اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، ماہ ربیع الاول کی مبارک اور پرنور گھڑیوں میں آپ سے مخاطب ہوں، اور آج ہم سیدی شیخ الاسلام کی معرکۃ العراق کتاب، جو انتہائی محبت اور عشق سے گندی ہوئی تحریر ہے، آج ہم اس کے ریویو کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس کتاب کا نام ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیکر جمال، اور عربی میں کیا خوبصورت انداز میں حضور سیدی شیخ الاسلام نے اس کو تحریر فرمایا۔ اس کا ٹائٹل اطیب الرسول فی شمائل الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گویا کہ دیکھیے سرکار کیسے ہیں۔ معزز سامعین، اس کتاب کے 23 یعنی 23 اس کے چیپٹرز ہیں، ابواب ہیں، اور آج ہم اس کے پہلے باب، جس کا ٹائٹل ہے وصف حسن النبی، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسین سراپا کا تذکرہ۔ یہ جو مہر میں ہیں حرارتیں، وہ تیرا ظہور جلال ہے۔ یہ جو مہر میں ہیں حرارتیں، وہ تیرا ظہور جلال ہے۔ یہ جو کہکشاں میں ہے روشنی، وہ تیرا غبار جمال ہے۔ معزز سامعین، یہ کتاب سیدی شیخ الاسلام کی اپنے آقا و مولا حضور نبی محتشم کے ساتھ بے پایاں عشق و محبت اور بے کراں محبت کی عکاسی کرتی ہے، اور قاری کو کون و مکان کے سرور کی محبت سے سرشار کرتی چلی جاتی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ آپ کے حسن و جمال پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ یعنی تکمیل ایمان کے لیے یہ بات بھی شرط ہے کہ ہم اس بات کا اقرار کر لیں کہ رب کائنات نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود اقدس حسن و جمال میں بے نظیر و بے مثال بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس باب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاسانی حسن و جمال، آپ کی رنگت، آپ کے مہتاب سے بھی روشن تر چہرہ مبارک کا بیان جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ باور کرنے میں کوئی مشکل نہ ہوگی کہ صبح الست سے شام ابد تک کسی بھی ہستی کو وہ خوب روئی، وہ رعنائی، زیبائی، وہ دلکشی و دلبری، دل ربائی اور کشش عطا نہیں کی گئی جو خالق کائنات نے اپنے حبیب مکرم کو با تمام و کمال و با افراد عطا کی ہے۔ نگاہ عشق سے دیکھنے والے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روئے مبارک کی زیارت سے مشرف ہوتے تو بے ساختہ کہہ اٹھتے کہ آپ چاند سے کئی گنا بڑھ کر صاحب جمال اور جاذب نظر ہیں۔ آپ کا حسن قامت بھی اپنی مثال آپ ہے۔ اس لحاظ سے بھی آپ تمام انسانوں سے زیادہ حسین و جمیل اور شکیل و رعنا تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روئے انور کا ذکر جب آپ سنیں گے تو آپ کو بھی اپنی چشم تصور سے دیکھنے کی خوش بختی
नसीब होगी। आपकी रंगत, आपके जिस्म अतहर की लताफत व नज़ाफ़त और इस हसीन पैकर के बदने अतहर से फूटने वाली अंबरी खुशबू से आप भी मशामे जाँ को मुअत्तर होता हुआ महसूस करेंगे। लेकिन जहाँ तक भी ज़िक्र हो हुज़ूर की मिदहा, हुज़ूर की हम्दो सना, हुज़ूर की शान को हम कमा हक़ूहू बयान नहीं कर पाते। जैसे कि शायर ने फरमाया, थकी है फ़िक्र रसां और मिदहा बाकी है। थकी है फ़िक्र रसा और मिदहा बाकी है। कलम है आबला पा और मिदहा बाकी है। तमाम उम्र लिखा और मिदहा बाकी है। वर्क तमाम हुआ और मिदहा बाकी है। तो आइए आज इस किताब के पहले चैप्टर यानी जिसमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रूए अनवर का तज़किरा है, हसीन सरापा का तज़किरा है, आइए उसका ज़िक्र शुरू करते हैं। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हसीन सरापा का तज़किरा सुनते हुए आइए आज हम अपने चश्मे तसव्वुर में उसी नूरानी वादियों में सफ़र करने की कोशिश करते हैं। आइए चश्मे तसव्वुर में आका के हसीन मुखड़े की ज़ियारत की सआदत हासिल करने की कोशिश करते हैं। आका के वद्दुहा मुखड़े, आका की वल्लैल ज़ुल्फ़ों, आका के हसीन दिलरुबा सरापे का अपने चश्मे तसव्वुर से ज़ियारत करने की और नज़ारा करने की कोशिश करते हैं। मुअज़्ज़िज़ सामीन, सय्यदी शेखुल इस्लाम फरमाते हैं, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक सबसे हसीन व जमील, पुरकशिश, नूरानी, जाज़िबे नज़र, नहायत रोशन, शगुफ्ता और शादाब था। कदामत में आना, रंगत सफ़ेद, जसामत मुतनासिब व मौज़ूं और रंगतो निगहत मुनव्वर और ताबां थी। चेहरा मुबारक ना तो बहुत गोल और ना ही बहुत लंबा था, बल्कि आपका चेहरा मुबारक दोनों सूरतों के दरमियान था, यानी गोलाई और लंबाई के एतबार से एतदाल पर था। आइए जिन्होंने हुजूर को अपनी ज़ाहरी आँखों से देखा, आइए उनसे पूछते हैं कि हुजूर कैसे थे। सैयदी शेखुल इस्लाम फरमाते हैं, उन्होंने तहरीर फरमाया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब भी आपके चेहरे मुबारक को देखते तो पुकार उठते, वो बरगज़ीदा अमीन जो भलाई की दावत देता है। उसके चेहरा मुबारक की ताबानी ऐसी है जैसे अंधेरे में बद्रे कामिल ज़ोफ़िशा हो। और देखिए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब आपके चेहरे मुबारक को देखते तो उनकी ज़ुबान पर ज़ुहैर बिन अबी सलमा का शेर आ जाता कि या रसूल अल्लाह, अगर आप कुछ और होते तो आप 14वीं का चाँद होते जो बहुत रोशन होता। हज़रत जाबिर बिन समरा बयान करते हैं कि मैंने चांदनी रात में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। उस वक्त आप सुर्ख पोशाक, सुबहान अल्लाह, सुर्ख पोशाक ज़ेबे तन किए हुए थे। मैं बैक वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता और चाँद को देखता। आप फरमाते हैं मुझे चाँद से कई गुना बढ़कर हुजूर का चेहरा हसीन लगा। एक आरिफ बिल्ला ने क्या खूब लिखा है कि ये तशबीहात सब तकरीबी हैं, वरना एक चाँद क्या हज़ारों चाँद भी हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा नूर नहीं हो सकते। मैं इजमालन ये कहने पर ही इक्तफ़ा करूँगा, सैयदी शेखुल इस्लाम लिखते हैं कि मैं इजमालन ये कहने पर ही इक्तफ़ा करूँगा कि तमाम अंबिया और रुसल के जमी और साफ़ो खसाइस, महामिदो महासिन और रानाइयों और ज़ेबाइयों को अल्लाह ताला ने आपके वजूदे अतहर में जमा फरमा दिया था। यानी हुस्न यूसुफ, दमे ईसा, यदे बैज़ा दारी,
हुस्न यूसुफ दमे ईसा यद बैजादारी आंचे खूबा हमादारन तू तन्हा दारी। आगे एक और रवायत शेखुल इस्लाम नकल फरमाते हैं कि हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाले अक़दस से चंद रोज़ कबल हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इमामत में नमाज अदा कर रहे थे कि आपने पर्दा हटाकर हमारी तरफ देखा तो यूं महसूस हुआ गोया आपका चेहरा मुबारक कुरान के वर्क की तरह था। कअन्ना वजहहू वर्कतु मुसहफिन। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। आका का चेहरा मुबारक कुरान के वर्क की तरह था। आगे एक और रवायत हज़रत बरा बिनते आजिब बयान फरमाते हैं कि मैंने सुर्ख पोशाक में मलबूस किसी दराज गेसू हसीन को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा खूबसूरत नहीं देखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत बरा ही बयान फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। उस वक्त आप सुर्ख पोशाक ज़ेब तन किए हुए थे। आगे मज़ीद इसमें जो इजाफ़ा है अल्फाज का वो सुनिए। और जुल्फ़ों में आप आका अलैहिस्सलाम नबी मुहतशम मांग निकाले हुए थे। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा हसीन व जमील ना तो पहले किसी को देखा और ना ही आपके बाद किसी को देखा। सुभान अल्लाह। हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैंने चांदनी रात में रसूलुल्लाह की ज़ियारत की। आप भी फरमाते हैं मैंने देखा कि आप सुर्ख पोशाक ज़ेब तन किए हुए हैं। सुभान अल्लाह। मैंने यक वक्त आका को देखा और चाँद को देखा, मगर मुझे आप चाँद से कई गुना ज़्यादा हसीन लगे। नाज़रीनो सामईने मुहतशम, ये आका अलैहिस्सलाम के हसीन सरापा के तज़किरा में से कुछ रवायात थीं। आने वाली कुछ दिनों की जो सीरीज़ हैं उनमें आप ताजदारे कोनो मकां के हसीन कदोकामत, चेहरा अनवर, रंगत मुबारक, आका कैसे चलते थे, आपकी बिनाई कैसी थी, आपका लहन, आपकी गुफ्तगू की तासीर कैसी थी, ये सब आप सुनेंगे। और इस किताब की आने वाली जो सीरीज़ हैं उसमें आप ये भी जान सकेंगे कि हुज़ूर नबी अकरम के सर अनवर और रीश मुबारक में कितने बाल सफ़ेद थे। जब आप अपने बालों को झटकते तो आपका रुए मुबारक रोशन तर और ताबनाक तर हो जाता। जब आप सहाबा किराम की महफ़िल में सुबह सादिक या शाम के वक्त तशरीफ़ लाते तो आपकी जबीन मुबारक यूं ज़ूफ़िशा होती जैसे रोशन चराग चमक रहा हो। आपके चश्माने मुक़द्दसा स्याह, पलकें दराज और पुतलियाँ गहरी स्याह थीं, जिनमें कभी कभी सुर्ख रंग के डोरे दिखाई देते थे। आंखें इस हद तक सुरमगी थीं कि जब भी कोई आशिक आपके चेहरे की तरफ देखता तो उसे महसूस होता कि चश्माने मुक़द्दसा में सुरमा लगा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बसारत इस हद तक तेज़ थी कि रात के घने और तारीक अंधेरे में भी आप उसी तरह देखते जिस तरह दिन के उजाले में देखते थे। आने वाले अब्वाब में आप ये भी जानेंगे कि आका अलैहिस्सलाम की दिलनशी आवाज़, आपकी दीदा ज़ेब रीश मुबारक, आपकी मोतियों से भी रोशन तर मुक़द्दस दांत, आपके मुश्कबार रुखसार, सीना मुबारक, बतने अक़दस, नाजुक गर्दन, खूबसूरत शाने, आपकी कलाइयाँ, मुबारक हाथ, हथेलियाँ, मुबारक उंगलियाँ, कदमैन शरीफैन की ज़ियारत से भी आप चश्मे तसव्वुर में बहरायाब होंगे। आका अलैहिस्सलाम के जिस्मे अतहर को और आपके सरापाए मुबारक को सैयदी शेखुल इस्लाम ने इस खूबसूरत अंदाज में बयान किया कि कारी
چشم تصور میں اس حسین سراپا مبارک کی رعنائیوں میں گم ہوتا محسوس کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کے کس کس عضو مبارک اور وصف منور کا بیان کیا جائے، گویا آپ تو حسن و جمال کا ایک جہانے بے پایاں تھے۔ آپ کا جتنا تذکرہ کیا جائے، آپ کے حسن و جمال کو جتنا بیان کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ تو کسی نے کہا زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔